Well, friends, we are going to talk to you on the what most expected topic was functions. We said earlier in the Cartesian product of two sets, we said we are going toward a very important topic. Is called functions, cross products. Then we talked relations. We had an earlier video on the relations, and now today the functions. Functions are the relations. Now here we talk about the function. Functions what? Function are what is a function? Function is a relation. Is a relation. All functions are relation, but all relations are not functions. Which relation are called functions? Which relation? A relation in which first component of is not repeated is called function. Let me example give a relation. Relation is equal to 1 and 3 and 2 and 5, 3 and 6 and 1 and 8. Is it a function? No. Here the first entry has gone to here. First 1 goes to 3, 1 goes to 8, not accepted. Function is that relation in which the first entry or first component of the pair is not repeated. Well, another example of real number. Say 2, 3 and 4, 5, 6, 7. Is it a function? Yeah, this is a relation and this relation is a function. Here, because the first component of each pair are distinct. हर पेयर का एक जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट, अलग अलग है. अब क्या है? फंक्शन इज ए रिलेशन. फंक्शन इज रिलेशन function where the first entry is not repeated. Okay, let's say another item. 2 and 4, 3 and 4, 5 and 6. Is this is a relation? Is this relation a function? क्या ये relation function है? Answer yes. What is my parameter? मेरा पैरामीटर है क्या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए? किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरा पैरामीटर है क्या? मेरा पैरामीटर है दोस्तों, मेरा पैरामीटर है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड. या 2, 3, 5 अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये, हाँ देखोगे ये 4 2 बार आ रहा है सेकंड में, सेकंड से मेरा कोई संबंध नहीं है. सेकंड 2 बार आए, 4 बार आए, सब में आए, मुझे कोई मतलब नहीं है. लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि पहला कंपोनेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. फर्स्ट कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीटेड. रिलेशन का वो रिलेशन जिसमें पहला कंपोनेंट रिपीट नहीं होते हो वो फंक्शन कहलाएगा. फंक्शन एक रिलेशन होते हैं. फंक्शन रिलेशन के का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक टाइप है. रिलेशन है, फंक्शन एक रिलेशन है. लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता. जिस रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट होंगे तो वो जो है फंक्शन नहीं होगा. तो फंक्शन का क्या किया? फंक्शन ए टू बी कोई फंक्शन है, वो एक रूल है. फंक्शन एक रूल है, एक पैटर्न है जो एक सेट के ए के मेंबरों को बी के यूनिक एलिमेंट से मिलाए. एवरी मेंबर, पहली कंडीशन ये कि एवरी मेंबर जो हमारा डोमेन है उसके हर मेंबर के एक यूनिक जो है वो उसकी इमेज होनी चाहिए, उसका एक साथी होना चाहिए. ए से बी तक का जो हमारे पास फंक्शन है उसकी कहानी यहाँ है. मैं आपको बता दूँ, मैं एक डायग्राम से दिखा दूँ फंक्शन को, रिलेशन को मैं डायग्राम से दिखाता हूँ. मेरा डायग्राम ये है. मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी. ऐसा एक कोई रूल, any rule which correspond the set, the element of set to set B, any such rule, a rule from which makes every member of 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1 goes to 7, 2 goes to 7, 3 goes to 8. Well, 1 goes to 7, 2 goes to 7, 3 goes to 8. Well, this is a function. Function says every element of A should have a unique image in the B. That 1 has a unique member. If it is 1 goes to 9 and now it is a function or not? No, it's not a function. क्योंकि 1 goes to 7, 1 goes to 9. 1 does not go to unique element of the B. Therefore, it is not a function. So, that means A
every member of A. Okay, if I got one, we have got this one, 1, 2, 3, 4, and here I got 7, 6. 1 goes to 7, 2 goes to 7, 3. Now, is it a function? No again. No again. No. Because I said function is a rule which takes all members of A to the B or to the unique element of B. You find a unique element, every member of a set A, which is called domain, correspond to unique element in the B, which is called codomain. So friend, if 4 is left here, it is not a function. It is not a function because I said function is a rule which relates every member of the domain to the codomain. So here 4 is left here, therefore it is not a function. If function, so let's make it clear. Function is what? Function is a relation, of course. Function relation, and where a relation where every first entry is different, they are distinct. Every member of A should have a unique element in the B. A is called domain, B is called codomain. Well, I just give another example. So I just dramatically I just show to you. Here it is A 1, 2, 3. And this is 5, 6, 7, 8, 1 goes to 5, 2 goes to 5, 3 goes to 6, and here. The image of image of 1 is equal to 5, image of 2 is equal to 5, the image of 3 is, this is called image. The B element, the Y here is called X, this is Y, X is equal to 3, Y is equal to 6, this is the 1. So this is, 6 is the image of 3. 6 is the image of 3 and 3 is the pre-image of 6. This is a pre-image, 6 ka pre-image. This is pre-image of the 5 is 2 and 1. Pre-image, image in the B, pre-image in A. So this is, here we go, pre-image of A and B. So here we say the function, this rule is F. Then what is the image of 1 is equal to 5? What is the image of the 2 is equal to 5? What is the image of 3 is equal to what? 6. This is how called image, value of the function. 7 and 8. Well, what is domain of the F? Domain of the F is A. What is the codomain of the codomain of this one? Is codomain is B. And this is what is the range? Range is what? The images 5 and 6. 5 and 6. This set is 5 and 6 called the range of this. This is called range. This is the range here. So there are 3 terms, rather 5 terms. Image, pre-image. This is a domain, this is codomain. Those who are being related, they have been corresponded, they are called image. They are called images. जो images हैं, उनका set is called range. This is called. Before I go to some question, I tell you the types of the function we go into it. We have got into function, we have got onto function. This is I tell you 1 to 1 and I talk the name of the function. This is I'll say. Functions. Well, I go here. 4, 5, 8. This is equal to say 5, 6, 9, 10. 4 goes to 5. 5 goes to 5. 8 goes to 10. Here, range is what? 5 and 10. And what is codomain? Codomain is 5, 6, 9, 10. Range here, this is the function f here. The range of f is what? Is 5 and 6. And what is the codomain was? Codomain is equal to 5, 6, 9, 10. Here, the range is a subset of codomain. Subset of codomain. Such functions are called into function. This is the example of into function. Into function where there is element which has not been corresponded by any x. Some
left without any correspondence from the A set A elements. So here is into, and suppose this is into. Suppose this is left out. Here, second case, this is left out. Here, now range is 510, codomain is also 510. In this situation, it is onto. Onto when range is equal to codomain. When range is equal to codomain, this is called onto function. This is called onto function when range is equal to codomain. First into, then onto. Onto is also known as surjective function. This is also known as surjective. This is also known as surjective function. Surjective functions. Number subjective functions. Here surjective means onto. Onto means when the range is equal to the codomain. The next type, this is what is called 1-1 functions. 1-1 function like this. 1-1 function means every element have its distinct impage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1 goes to 5, 2 goes to 6, 3 goes to 7. There is 1 to 1 column. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. यदि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x1, तो इसका इमेज fx1 है, और ये x2 है तो ये fx2 इसकी इमेज है. तो यदि x1 और x2 अलग अलग हैं तो ये भी अलग अलग होंगे, और यदि ये इक्वल टू है तो इक्वल टू होंगे. दिस इज वन. यदि 1 1, दिस इज कॉल्ड 1 1. दिस इज कॉल्ड 1 1. 1 1, दिस इज कॉल्ड 1 1. is also known as injective. This is called injective function. Injective. Injective means 1 and 1. Injective functions. 1 1. यदि यहाँ पर ये x1 x2 इक्वल है तो इमेज भी इक्वल होंगी. यदि x1 x2 इक्वल है, this implies in 1 1 these images are also equal. If they are different, then they are also different. So every one has another unique one, and it's a different. Images are different for images. There is no two x1 which goes to same image. No, that is different. This corresponds 1 to 1, as the name suggests, 1 to 1. उसका एक करके बन के, मतलब ये वाला. यदि ये बाहर रहा हुआ है तो ये 1 1 into है. यदि ये बाहर नहीं रहेगा तो ये 1 1 onto है. 1 1 और onto हो, 1 1 भी हो, इंजेक्टिव भी हो, और बाई सर्जेक्टिव हो, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं. बाइजेक्टिव का मतलब दो. बाई मीन्स टू. बाई साइकिल, दो पहियों वाली. बाई मीन्स टू. सो बी आई आया तो बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी है, और इसका मतलब जो है वो ऑन टू भी है. ना तो कोई एलिमेंट ए का बचा हुआ है, ना ही एलिमेंट बी का बचा है, और एक एक करके हैं, मतलब यहाँ एक एक करके है. लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ दिस विच रिटन देयर ऑन द टॉप. ऑफ कोर्स दिस इज रिटन. लेट मी राइट अगेन हियर. Okay, 9, 11, 12. So see 15, 16, 17. This goes to this, this goes to this, this goes to this. And number of elements in this, number of elements in this, they are equal. The domain and codomain have same number of elements. This is one, number one. Number two, this goes to the one, they are different. This is called bijective. Bijective functions are like this. Right? I want to make simple reference here. Suppose I want to change डोमेन को रेंज बना दूं, रेंज को डोमेन उल्टा कर दूं, तो यहाँ 15 का 9, 16 का ये हो जाएगा. लेकिन मैं यहाँ करूँगा तो ये तो हो जाएगा, 9 का क्या होगा, इस फंक्शन का उल्टा क्या होगा, दो यहाँ क्या होगा, ये 9 तो रह गया. अब ए टू बी था, ए का 9 रह गया, डोमेन का 9 रह गया, तो ये फंक्शन नहीं बना. इसका फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा, उल्टा नहीं कर सकते. डोमेन को रेंज को करके आप उल्टा फंक्शन डिफाइन करें तो नहीं होगा. कहाँ नहीं होगा, ना तो ऑनटू में होगा और ना ही वो इंजेक्ट उसमें इनटू में होगा. इनटू में तो कोई रह जाएगा. ऑनटू में क्या होगा, ऑनटू मान लो हमारे पास ऑनटू फंक्शन है, मान लो यही ले लेता हूँ, मान लो ये ऑनटू फंक्शन है, ये ऑनटू फंक्शन है, ये हटा दिया, ऑन टू है. अब मैं उल्टा करूंगा तो 15 2 पे चला गया, 15
तो इसका मतलब वो तो एक आदमी यूनिक पे नहीं गया, तो ऑन टू भी उल्टा नहीं कर सकते। इसको हम इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हम इस फंक्शन इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? इन्वर्स फंक्शन तभी इन्वॉल्व होगा, हम किसी का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। मतलब इसका मतलब 1 1 होगा और ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव का होगा। दोस्तों, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। आइए सवाल करते हैं। ये तो मैंने रेफरेंस भेज किया, इन्वर्स का मैं अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा, अलग वीडियो दूंगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कब कब होता है, किस प्रकार का इन्वर्स होता है, इसकी बात करेंगे। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करूंगा एक वीडियो में, 2 वीडियो बात करूंगा, तब तो आपको ये इन्वर्स की बात मैं बताऊंगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे देखें कि ये बाइजेक्टिव है या ऑन टू है या 1 1 है, इस कैसे करेंगे। तो मैं इस टाइप के एग्जाम्पल देना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल पहला ये है। ओके, पहला सवाल, let n be set of natural number. Okay, and function is from n to n, means domain is n and codomain is also n. N to n is the one to go. Well, friend, for and this function defined by fx is equal to 2x plus 3. मतलब x बराबर में यहाँ 1 लूँगा, यहाँ पर x बराबर 1 लूँगा, इसको मैं n ले लूँ, x ले लूँ, तो x ले लिया, all x belongs to n, all x belongs to n. 1 goes to 1 कहाँ जाएगा? 1 5 पे जाएगा, 2 कितने हो जाएगा? 7 पे जाएगा, 3 रखूँगा, 3 6 9 पे जाएगा। हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, वो n से n तक है। ये रहा मेरा a n, ये रहा दूसरा n, और ये यहाँ से यहाँ इनको जोड़ रहा है, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट। तो बताओ, क्या ये 1 1 है? क्या ये इंजेक्टिव है? क्या ये सर्जेक्टिव है? क्या ये बाइजेक्टिव है? क्या है? क्या ये बाइजेक्टिव है? क्या ये बाइजेक्टिव है? इज इट ए इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, और नन ऑफ देम तो होगा ही नहीं। चलो, एनी हाउ दिस इज गिवन टू अस। पहली बात यह है कि ये 1 1 होगा। 1 1 कैसे होगा? यदि ये fx1 इज इक्वल टू fx2 हो तो 2x1 प्लस में 3 इज इक्वल टू x2 प्लस 3, 3 3 काट, 2 2 काट, x1 इज इक्वल टू x2। ये आ गया मेरी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है कि fx1 fx2 के बराबर है तो x1 अपॉन x2 के बराबर होना चाहिए। 1 1 है तो ये 1 1 है, तो इंजेक्टिव तो है। पहली बात तो ये है, इंजेक्टिव है। अब मुझे देखना है कि सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव भी हो सकता है, सर्जेक्टिव भी हो जाए, क्या पता लगता है। देखते हैं अभी आगे कहानी क्या है। क्या सर्जेक्टिव है? क्या ये बाइजेक्टिव है? क्या दोनों इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होकर बाइजेक्टिव बन गया हो? लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। क्या मैं बात कर रहा हूँ? क्या यहाँ पर कोई ऐसा n लगाएंगे और यहाँ पर बचा रह जाएगा? मैं 1 का कौन साथी होगा यहाँ पर? 1 किसके कारण आएगा? 1 का आएगा ही नहीं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं तो 5 से शुरू होगा, 5 से 6 7 8 ये आ जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा n यहाँ पर नहीं है जो 1 को भेज दे या 2 को कर दे या 3 को कर दे या 4 को कर दे, कोई नहीं है। ऐसा मैं x रखूँ यहाँ पर जिसकी वैल्यू 1 आ जाए, नेचुरल नंबर हो, ऐसा कोई नहीं है। 1 सबसे छोटा 1 है तो 5 आएगा। कोई भी ऐसा n यहाँ पर नहीं है जो इस पर रख दूँ यहाँ पर और इसकी वैल्यू ये आ जाए, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। और इनटू रहेगा, हमेशा इनटू रहेगा, इनटू रहेगा, इनटू। तो मेरा आंसर कौन सा आया? ओनली इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ रह जाएंगे, अलग से कुंवारे रह जाएंगे, इनकी कोई शादी नहीं करते। देयर इज नो गर्ल कॉरस्पॉन्ड टू देम। 1 2 3 4 का कोई साथी नहीं है जहाँ पर ये वाला। तो ये एक इंजेक्टिव हमारा फंक्शन है, इंजेक्टिव। अगला एक प्रश्न लेते हैं। लेट्स लेट अनदर क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि 1 1 देखने के लिए क्या करेंगे। वेल ओके, हमारे पास सवाल है लेट a इज इक्वल टू, लेट a इज सेट -1 और 1। एक सेट a है एंड दिस इज गोज फ्रॉम a to a, a to a, a to
Okay, well, this is goes from A to A, and let me take suppose f b कोई भी ले लें चलो, and fx एक fx here, fx is equal to what, x square. बोलिए क्या ये इंजेक्टिव है का ये? पहली बात तो सर्जेक्टिव नहीं है. मैं -1 रखूँगा या माइनस के रखूँगा तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव आएगा, सारा नहीं आएगा, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है. नो सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं. ओके, पहली बात. वेल फ्रेंड, मैं 1/2 यहाँ रखूँगा, 1/2, इसका 1/4 आ गया. इसका मैं 1/2 रखूँगा तो 1/2 का 1/4 आया. तो -1/2 का भी क्या रहा, ये वाला. तो ये वाला मान लो 1 1 नहीं है. इट इज़ नॉट 1 1, 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 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है. ना ये सर्जेक्टिव है, ना ये 1 1 है. और क्या हाल चाल है? और वैल्यू देखिए साहब, -1 की वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी. और हम कह सकते हैं यहाँ पर मैनी 1 है यहाँ पर, और मैं क्या कहूँ, और 1 1 नहीं आया. ये ऑन टू की बात करूँ, मैं ऑन टू की बात करूँगा, ऑन टू. तो सर्जेक्टिव की बात मैंने कर ली. क्या था सर्जेक्टिव के लिए? मैंने क्या कहा सर्जेक्टिव के लिए? कहा मैंने कि यहाँ पर मैं ये इवन नंबर हैं तो उनका अलग अलग वो सेम नंबर आएंगे, सेम नंबर आएंगे. तो यहाँ पर वो नहीं आएंगे सारे. जो हमारा जो रेंज होगा वो रेंज इज ए पार्ट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ए पार्ट ऑफ कोडोमेन. तो इसका मतलब सवाल इनटू हो गया हमारा. सवाल जो हमारा ये आया, ये 1 1 नहीं आया, ये ऑन टू नहीं आया, तो हमारा ये जो आंसर होगा इसका इनटू होगा. इनटू, ये बाइजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, कोई नहीं है. इसका जो आंसर होगा वो सर इनटू होगा. इनटू है, जहाँ पर एक रेंज इज अ पार्ट ऑफ द कोड डोमेन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मेरे एक बात, लेट f from z to z, let there is a one function let to z, fx is equal to, इसमें कौन सा फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है? यहाँ पर कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू है, जिसका नाम 1 1 और ऑन टू है. ऐसा मुझे चाहिए. 1 1 ऑन टू का मतलब है वो उसमें सारे के सारे z होने चाहिए और fx इज इक्वल. ये बताओ कौन इसमें चारों में से कौन सा ऑन टू है? लेट z फंक्शन गोज फ्रॉम z टू z. हाउ मेनी दे आर इनमें से चार में से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये चेक करना चाहते हैं दोस्तों. बाइजेक्टिव का मतलब है ऑन टू, सारे के सारे आने चाहिए. मैं z का रखूँगा यहाँ पर तो सारे z है. z का मतलब इंटीजर है. इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4, -1 -2 -3. यदि मैं माइनस रखूँगा इस वाले में तो प्लस आ जाएंगे, सारे के सारे नहीं आएंगे. तो ये बाइजेक्ट, ये सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये रेंज और कोड डोमेन के बराबर नहीं है. रेंज इसका पार्ट है. यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आए, ओनली पॉजिटिव. यहाँ की बात करूँगा मैं तो यहाँ पर 2x + 1 है, यहाँ पर 2x + 1 है. ऐसा कौन सा है यहाँ पर 2x + 1 ऐसा है जिसका के आंसर जो है वो जो आंसर यहाँ पर ऐसा x कौन सा होगा जिसका आंसर मुझे चाहिए? यहाँ 2x + 1 और यहाँ पर 2x. यहाँ ऑड वाले हैं, ऑड वाले मुझे यहाँ पर मान लो ये सब ऑड वाले हैं, यहाँ ऑड आएगा. यहाँ पर 4 आएगा तो क्या उत्तर आएगा? 4. मुझे 4 चाहिए. ऐसा कौन सा रखूँ x जिसका उत्तर 4 आए? तो 2x = 3, x = 3/2. नहीं भैया, मुझे तो ये मेरा तो z यहाँ पर 3/2 नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है. तो भैया इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8. ये इसमें जो भी x रखेंगे वो ऑड आएगा. तो इसलिए ये वाला भी हमारा फंक्शन नहीं है. ये सारे सारे नहीं होंगे. गलत, ये सर्जेक्टिव नहीं है. मेरा बात ये है, मेरा यहाँ पर z 4 है. इसका साथी कौन होगा? इसका प्री इमेज कौन होगा? उसका प्री इमेज इसके अनुसार 3/2 होना चाहिए, लेकिन 3/2 तो z के अंदर है नहीं. तो इसका मतलब इसका साथी कोई नहीं, इसका प्री इमेज कोई नहीं है, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं है. ओके, ये सर्जेक्टिव नहीं, ये सर्जेक्टिव नहीं. अब इसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, यहाँ x³ की बात करूँगा. x³ का मुझे जहाँ चाहिए
तो यहाँ क्यूब आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर क्यूब का 8 आएगा। 7 का क्या होगा, क्या एक्स रखूँ कि 7 आ जाए? कोई एक्स नहीं है इनमें से जिसका क्यूब करूँ 7 आ जाए, नहीं है यहाँ से। तो मेरा आंसर ये रहेगा, सारे सब कुछ इसी में है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, सारे के सारे इसमें है, ये है बाइजेक्टिव है, ये मेरा आंसर है। दोस्तों हम इस तरह से बाइजेक्टिव और फंक्शंस, इंजेक्टिव फंक्शन देख सकते हैं। मेरा अगला टॉपिक होगा, एक अगला टॉपिक बताऊंगा, उसमें फंक्शन को फर्दर करूंगा, टाइप्स के बताऊंगा, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। और ये A to B यदि 3 एलिमेंट इसमें हो, 2 इसमें हो, तो कितने सर्जेक्टिव बनेंगे, कितने मैपिंग बन सकते हैं, अगले उसमें मैं आई विल एक्सप्लेन यू दिस। थैंक यू।